آپ لوگ بیٹھ جائے برائے کرم، بڑی مہربانی ہوگی، آپ لوگ بیٹھ جائے. اللہ سلام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، زندہ باد زندہ باد کے مرتبہ علی پیغمبر کو خدا دیتا ہے. آپ لوگ برائے کرم جو حضرات کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بیٹھ جائے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی. کہ مرتبہ علی پیغمبر کو خدا دیتا ہے، تم گھٹا دیتے ہو اور وہ بڑھا دیتا ہے. تم جسے عابد بیمار کہا کرتے ہو، ان کا بیمار زمانے کو شفا دیتا ہے. حضرات یقیناً جو باتیں کہی گئی ہیں، جیسے کہ حضرت نے بتایا کہ نماز کی پابندی کرو. 5 دن نماز پڑھو گے نا، 5 دن نماز کی طرف آؤ، پھر نماز تمہیں خود بلائے گی انشاءاللہ. خود بخود تم پاک رہنے لگو گے، کپڑے بھی پاک ہوں گے. یعنی کہ کہیں بھی سفر کرو گے نا تو خود بخود انتظام ہو جائے گا. جو رہتے ہیں کچھ لوگ ناپاک رہنے میں مزہ ہی نہیں آئے ہوئے ہیں. یعنی کہ کپڑے پاک، جسم پاک، عادت بن جائے گی. تو نماز ضروری ہے، بہت ضروری ہے. قرض ہے ایک طریقے کا. اب تمہارے پاس کتنا بھی پیسہ کیوں نہ ہو، لیکن تم دوسرے سے اپنی نماز ادا نہیں کرا سکتے. جب قضا ہو جاتی ہے نا تو اتارنی پڑتی ہے، تو خود ہی اتارے گا. اللہ ہمت دیتا ہے. جو نماز نہیں پڑھتے ہیں آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ کل سے نماز شروع کر دو گے انشاءاللہ. نماز پڑھ کے دیکھو، بہت سکون اور چین اور جنے کیا کیا ملے گا. جتنے بھی آئیڈیا میرے کو آئے ہیں آج تک، وہ سارے مسجد میں آئے ہیں، مسجد کے اندر آئے ہیں میرے سارے. میں حکیم بنوں یا کیا بنوں، یہ وہ سب چیزیں. یا میں بار بار جو کرتا ہوں الگ الگ کام جو انوکھے ہوتے ہیں، جیسے کہ سارے عالموں کو بلانا، درکی کے سارے عالموں کی دعوت کر دینا، یا پھر کوئی نہ کوئی نیا کام میں کرتا رہتا ہوں. جیسے کہ پورے علاقے کے جتنے میرے ایریے کے ہیں، وہ جتنی یتیم بچے ہیں ان سب کو بلانا، یا پھر جانماز بیٹھنا. اب میرے آئیڈیا آئے گا ماشاءاللہ پورے ایریے کی کیا ہر جگہ جہاں ہو سکے گا انشاءاللہ، پورے بھارت میں انشاءاللہ پوری جان لگا دوں گا. اللہ چاہے تو کیا نہ ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی چیز ایسی نہ ہے جو نہ ہو سکے. ہر تو میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ پوری انڈیا کی ہر ایک مسجد کو میں پکا بنا دوں. بے شک سبحان اللہ. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے قبرستانوں کی دیواریں کرا دوں اور اچھے سے اچھا میں کام کروں انشاءاللہ. دین کی خدمت کروں، پیسے دیے تو اچھی جگہ یوز کروں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. اور وہ بھی کرتا ہوں میں، جیسے کہ میرے دواخانے پہ لنگر کا کام بھی چلتا ہے اور ہمیشہ چلتا رہے گا وہ انشاءاللہ. شربت فری، مٹھائی فری، حلوہ فری اور کھانا فری، سب کچھ فری ہے. اور دوائی میں ہی بہت راحت ہے. اب کوئی بھی اپنگ ہے، یعنی کہ وکلانگ ہے یا پھر ہینڈی کیپٹ ہے سمجھ جاؤ، تو اس کے لیے بہت راحت ہے. کوئی عالم ہے، حافظ ہے، مفتی، قاری، امام ہے، ان کے لیے بہت راحت ہے. کسی بھی دھرم کا گرو ہے اس کے لیے بھی راحت ہے. اور کسی بہن کا بھائی نہیں ہے، پتی نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اس کے لیے راحت. کسی ماں باپ کے بیٹے نہیں ہے، اس کے لیے راحت. سب کے لیے میں ایک سا نہیں ہوں. پیسوں کے پیچھے میں کبھی نہیں بھاگتا. پیسہ ملے گا اتنا ہی، چاہے حرام راستے سے کماؤ یا حلال راستے سے. وہ یقین ہے میرا. پوری دنیا کی دولت میں نہ اسرائیل کے پروڈکٹ کا میں ایڈ کر سکتا ہوں اور نہ میں اسے بیچ کے پیسے کما سکتا ہوں. 6 کروڑ میں بھی ایڈ نہیں کرتا ہوں کسی کمپنی کا بھی. آج تک دیکھا نہیں ہوگا تم نے ایڈ کرتا ہوا. دیکھا ہے مجھے کبھی؟ کبھی نہ دیکھو گے انشاءاللہ. پیسے کے پیچھے میں کبھی نہیں بھاگتا، پیسہ میرے پیچھے بھاگتا ہے. ایسے ہی بناؤ اپنے آپ کو انشاءاللہ تم بھی، تو پیسہ تمہارے پیچھے بھاگے گا. آج بھی میں اپنے جتنے بھی میرے ساتھ والے بندے ہیں ان کو سب کو دکھا رہا تھا کہ آج میں تمہیں چوراہوں پہ دکھاتا ہوا چلوں گا. بہت سارے لڑکے تاپ رہے ہیں، بہت بھیڑ اکٹھی ہو گئے، ہر جگہ کھڑے ہیں لڑکے چوراہوں پہ.
कभी कौमें ऐसे कामयाब नहीं हुई, वो कभी कामयाब नहीं होंगे जो ऐसे खड़े हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं। टाइम बहुत कीमती है मेरे दोस्तों, टाइम से कीमती कुछ भी नहीं। जो टाइम बर्बाद करता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता। माँ बापों का कहना मानो, घर में रहो, टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू दो। ये सोचते रहो बस क्या बनना है मेरा। जिसका कोई टारगेट नहीं है उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार है किसी काम की। टारगेट बनाओ, एम बनाओ अपना कि मुझे ये बनना है, इंशाल्लाह बनोगे। पूरी जान लगा दो हर तरीके से, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सबसे पहले मगर इल्म हासिल करो, दीनी और दुनियावी इल्म हासिल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे घर में सबसे पहले दीनी तालीम दी जाती है, उसके बाद दुनियावी तालीम, उसके बाद फिटनेस पे ध्यान दिया जाता है। समझ रहे हैं? फिटनेस भी जरूरी है। फिट आदमी अल्लाह को ज्यादा पसंद है, समझ गए? क्योंकि जब फिट होगा तो अपनी भी हेल्प करेगा, मतलब नमाज भी अच्छे से अदा करेगा, अपनी भी हेल्प कर सकता है, अपने परिवार की, अपने पड़ोसी की, अपने रिश्तेदार की, और अपने देश के लिए कुछ कर सकता है। और न अनफिट होगा ना तो वो अल्लाह की इबादत सही से करेगा, और ना ही वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार और अपने देश के लिए भी वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखो, गलत चीजें मत खाओ, मुंह को साफ रखो, गुटखा बीड़ी पान तंबाकू शराब नशा मत डालो मुंह में, नशे से दूर रहो, नशेड़ी से भी दूर रहो। यानी संगत का बहुत असर पड़ता है। अच्छे इंसानों में रहोगे तो अच्छी सोच आ गई। बेशक आपको पता नहीं कि मैं कितने आलिमों की कितना अदब और एहतराम करता हूँ, शायद उसी वजह से मेरा काम चल जाओ। और आलिमों का वहाँ पर मजमा लगा रहता है माशाल्लाह। मेरे दवाखाने में कभी असर की नमाज हो रही है, मतलब बाजमात, और कभी मगरिब की, कभी जोहर की, कभी कभी ईशा की, बाजमात। फ्री में जमात का भी सवाब मिल रहा है, समझ जाओ। वहां पर नमाज के लिए जगह है पूरी, और अच्छी अच्छी जानमाज है माशाल्लाह। ऐसे भी करो आप, दीन के लिए काम करो। अफसोस ना हो मौत के बाद कि मैं क्या करके आया हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ, मैं मौत के बाद मैं खुश रहूं, बस और कुछ ना चाहता। जो भी काम कर रहा हूँ मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। लोग जिन्हें क्या क्या मतलब निकालते हैं उस चीज का। मैं मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में पैसा दे रहा हूँ दबा के, माशाल्लाह अल्लाह के करम से अल्लाह दिला रहा है। और मेरे दिल में कसक नहीं होती, मतलब जैसे कह रहे मैंने दे रहा है, ये चीज ना मेरे अंदर कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जो लालची और कंजूस होते हैं मैं उनसे बड़ा दूर रहता हूँ, बहुत दूर रहता हूँ। कंजूसी ना हो ना आवे मेरे अंदर इंशाल्लाह। कंजूस भाई दूर रहना। कंजूस जिसपे पैसे हैं वो खर्च नहीं कर रहा, जैसे कि तुम देखते हो वो सड़ोवी गाड़ी में टहल रहा होता है, इस बहुत बुरे हालात में रहता है, उसके पास कोई जाओ तो 50-100 रुपए देता है, हालांकि दे सकता बहुत पैसे हैं फिर भी नहीं। तो वो उस पैसे का करेगा क्या, मेरी समझ में नहीं आता है कभी कभी कि करेगा क्या। भाई किसके लिए कमा रहा है पैसे? नहीं अपने ऊपर खर्च कर रहा है, अच्छा माल खा रहा है, और ना ही मतलब किसी को अपने बहनों पे, भाइयों पे, या फिर रिश्तेदारों पे पैसा खर्च कर रहा हो, पड़ोसी को दे रहा हो, ऐसा कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। तो मुझे सोचता हूँ ये क्या करेगा पैसे का, उसका कुछ भी नहीं होगा और वो मर जाएगा बेचारा, वो पैसा और लोग यूज करेंगे, और हिसाब पता कौन दे रहा होगा, वही दे रहा होगा। समझ रहे? इसलिए पैसा दिया अल्लाह तो अच्छे से अच्छा खाओ और औरों को भी खिलाओ, नहीं है तो सूखे टुकड़े खाओ तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। समझ में आ रहा है? हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। किसी को दे के आजमाता है तो किसी से लेके, हर आदमी आजमाइश में। बच्चों को इल्म हासिल कराओ अपने कीमती। जब भी कोई दवा खाने में आते हैं बुढ़िया और बुढ़े, ध्यान रखना मेरी बात, एक बहुत अहम बात बता जाऊं तुम्हें, फिर मैं जा रहा हूं। तो उनसे मैं पूछता हूँ कितने बच्चे हैं तुम्हारे, यानी लड़के कितने हैं, तो बोलते हैं 3-4। पता है पूछता क्या हूँ दूसरा शब्द क्या होता है, उन्हें दीनी तालीम दिलाई थी? बोले ना, दीनी तालीम जो नहीं दिलाता अपने बच्चों को, वहीं वो फिर माँ बाप की केयर नहीं करते। उन्हें नहीं पता माँ बाप क्या चीज है, उनका मर्तबा क्या है। जब भी तो हासिल होगा उन्हें कि मर्तबा क्या है माँ बाप का, जब वो दीनी तालीम लेंगे तो वो अपना माँ बापों का ध्यान नहीं रखते। बुढ़ापे में कहते हैं अरे हमें ना मतलब जाओ जहाँ चाहे,
तो वो मांगते हैं इधर उधर भी। मेरे भाई समझ रहे हो मेरी बात? अपने बच्चों को दीनी तालीम दो, उन्हें हक सिखाओ, यानी हराम हलाल की तमीज दो। वो किसी से गिबत, बुग़्ज़, जलन, हसद की तालीम मत दो। ये चीज निकालो अपने अंदर से। मुसलमानों में सबसे ज्यादा बुग़्ज़, जलन, हसद, कीना। अल्लाह खैर करे, बस यही सिखा रहा है। इस पे कहां से पैसा आ रहा है? ये बिल्डिंग खरीद रहा है इस, और ये तो बुलेट लिया है। ये चीज है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और जात बरादरी खत्म कर दो। जो इल्म वाला होगा वो ऊपर बैठेगा, और जो कम इल्म होगा वो नीचे बैठेगा, चाहे वो अब्दुल्ला पठान हो कोई हो। समझ रहे हो मेरी बात? समझो, यहीं पे इल्म जिसका हाथ, जो इल्म वाला होगा, कोई सी भी बिरादरी का, वो ऊंचे पे बैठेगा। यहाँ पे सब हम एक हो गए इस टाइम। समझ रहे हो मेरी बात? में क्या कर रहा हूँ? जात बिरादरी खत्म हो गई ना, यहीं पे सब एक हैं, मगर सैयद हमेशा ऊंचे पे ही बैठेंगे। क्या बात है, वाह, ये ध्यान रखना। वाह वाह वाह। उनका अदब एहतराम बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेरे यार। ख्याल रखो अपना। बाकी आप भाई ने काम शुरू किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तालीम बच्चों को मिलेगी, और अगर मैं भी कुछ करूंगा तो मुझे भी फायदा मिलेगा उसका। बेशक। आज भी मैं 2 मस्जिदों में गया था, असर की नमाज अदा की थी। उसका भी मैं लिंटर का वादा कर दिया मैंने, मतलब पड़ जाएगा इंशाअल्लाह। हर डेट बुक है मेरी, हर जुमा बुक है। कभी कभी जुमे के दिन ना आता हूँ मैं इसी मारे, क्योंकि जुमे के दिन मरीज भी आना, तो असर की नमाज पकड़ लेते हैं हम। जैसे असर की नमाज पढ़ लेंगे वही आके जाओ। समझ रहे हो? बस ऐसी कोशिश है मेरी। इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इसमें कामयाबी अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा। आप लोगों से दुआ चाहिए मुझे, इंशाल्लाह मैं कामयाब हूँ। इंशाल्लाह लग रहा है इंशाल्लाह। कोई रुकावट या कोई प्रॉब्लम ना आए। अल्लाह ताला हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। आमीन। और कोई भी मस्जिद अगर तामीर हो रही है तो उसमें इंशाल्लाह मुझे बुलाओ, मैं आऊंगा खुशी से। और जो जो मेरे पास आएगा दावत देने के लिए, मैं उसका बहुत ज्यादा अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, और उसका स्वागत करता हूँ, वो गिफ्ट भी देता हूँ माशाल्लाह। क्योंकि हदिया देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, सुन्नत है, हमारे आका की सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। उसमें मिलते हैं गिफ्ट बहुत अच्छे, जानमाज बहुत अच्छी वाली, और तस्बीह और खुशबू देना बहुत सुन्नत है। तो जो भी आगा उसे भी बहुत ज्यादा मैं दिल से लगाता हूँ इंशाल्लाह। तो आपके एरिया में भी कोई मस्जिद या किसी कब्रिस्तान की बेहुरमती हो रही हो तो इंशाल्लाह आना, मोस्ट वेलकम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो 70,000 रुपए कर दूंगा मैं, 50,000 इसके लिए और 10,000 मुफ्ती साहब के लिए, 10 और 10 उन वाले मुफ्ती साहब के लिए जिनकी तकरीर सुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।